ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਔਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਦਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦੀ ਦੇ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ। ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਧਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਵੇਲੇ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕੰਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰਾਮ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੁਆਂਟਾ ਟਨਾ ਮੂਹੀ ਲੱਕੜ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਟਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਟਨਾ ਮੂਹੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਗੁਣ ਉਹ ਟਨਾ ਮੂਹੀ ਲੱਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਣ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਣ ਲੱਭੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਉਨਾ ਉਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੀਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ। ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕਿਹ ਬਿਦ ਸੱਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 2 ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 3 ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 5 ਨੇ। ਸਰਵ ਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ, 2 ਹੋਣਗੇ, 4 ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ।
परमात्मा का जो पहला गुण है, हुण जेड़े गुण हुंदे ने ना, गुण चलते ने दिलों, क्योंकि जो मनुख दे दिल विच हुंदा वैसा ही उहदे आचरण विच हुंदा है। मनुख 15 किसी नूं मिलेगा, 20 मिनट वास्ते अपना रूप बदल सकता है। कोई रिश्तेदार आ गया घर विच, भावें वैसे लड़ाई रहिंदी होए, सारे परिवार के मैंबर 1-2 दिन वास्ते अपना रूप बदल लेंदे ने। इस करके हरेक मनुख अपना रूप बदलन च सक्षम है। 1 दिन वास्ते बदल लेगा, 2 दिन वास्ते बदल लेगा, रूप बदलिया जाता है। रूप का मतलब अपना नेचर, अपना सुभाव। हरेक मनुख अपना सुभाव बदल लैंदा है, और सुभाव का चलना हुंदा है दिलों। सुभाव चलता है हिरदे तो, आचरण चलता है दिमाग तो, बुद्धि तो। बुद्धि के हिसाब नाल अपने आचरण नूं बदलिया जा सकता है। बुद्धि के हिसाब के नाल मनुख 5 दिनों वास्ते भी दयालु बन सकता है, 4 दिनों वास्ते भी मिठ बोलड़ा बोल सकता है, 7 साल वास्ते भी बोल सकता है, बुद्धि के तल पे। पर परमात्मा का सुभाव ऐसा नहीं जिहड़ा तब्दील होने वाला है। सदैव एको ही सुभाव है, अज का नहीं। करोड़ों सालों तो जदों की ये धरती चली है, उदों का सुभाव उहदा एको ही है। मनुख सुभाव बदल लैंदे ने। घर च परौणे आउंदे ने, घर के जीआं दा वैसा सुभाव नहीं हुंदा जैसा 1 दिन पहला हुंदा है, बदलिया जाता है सुभाव। परमात्मा के पहले सुभाव के वास्ते महाराज ने गिणिया है। हुण एक होर मैं आप जी नाल गल विच ही सांझी कर दियां। जिस दा सानूं सुभाव पता लग जाए, उस तो असीं सारे ही काम करा लैंदे हां। हुण परमात्मा के इस सुभाव के कुछ गुण ने, अगर ये गुण साडी समझ विच आ जांदे ने, फिर असीं परमात्मा तो अपनी जिंदगी के बहुत काम सीधे करा सकते हैं। मैं सीधे शब्दां च कहां, पहला सुभाव ते महाराज ने गिणिया है, प्रभ बख्शंद दीन दयाल। परमात्मा बख्शण वाला है, भाव उहदा हिरदा इन्ना वड्डा है, वो औगुणा नूं चितारदा ही नहीं। बाणी दे विच ना श्लोक सहस्कृति च महाराज ने एक शब्द लिखिया है, श्लोक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, एक मनुख ने करोड़ां पाप भी किए होण ना, अरबां करोड़ां, वो करोड़ां पाप भी परमात्मा बख्श दिंदा है। जे उसका मन बुरी तरह के नाल ग्रसित है, बुरी तरह के नाल पापां नाल भरिया होया है, जे किते वो भी परमात्मा अगे बेनती करे ना, उहदे पाप बख्शे जांदे ने। महाराज कहते घोर दुखियं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं करो। ये उदाहरण है अगे। घोर दुखियं, पता नहीं कितना ही दुख लग्या हो जिंदगी। अनक हत्यं, पता नहीं किन्नियां ही हत्यावां कीतियां होण। जन्म दारिद्रं, जन्म गरीबी विच निकल रहा हो। महाविख्यादं, लखां ही झगड़े जिंदगी च पए होण। हुण इन्ना कुछ, वैसे तो ये 4 रोग कट्ठे ही ने, 4 विचों एक ना एक सारियां दी जिंदगी विच ही हुंदा है। इन्हां 4 विचों एक सारियां दी जिंदगी विच है, किसे विच कोई है, किसे विच कोई ना कोई। इन्हां 4 रोगां चों एक रोग हरेक दे घर विच ही लग्या हुंदा है। साहिब जी कहंदे ने ये कट्टे जा सकते ने, ऐसा नहीं ये ला इलाज ने। किवें कट्टे जाणगे? मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक। ये मिट जाणगे जिस दिन मनुख परमात्मा का नाम लएगा। जिस दिन ये कह देगा परमात्मा मैं कुछ नहीं हाँ,
सब कुछ तू ही है, यही तो उसका नाम लेना है। जो बारी तौर पर असी जाप करते हाँ, बाणी पढ़ते हाँ, बार बार बाणी पढ़ते हाँ, ये काहदे लई पढ़ी जाती है, कारण की है? बार बार वाहिगुरु वाहिगुरु बोलते हाँ, इसका कारण की है? क्यों बोलते हैं बार बार? बार बार बोलन दे नाल हिरदे दी मैल लहिंदी है। अंत नूं मनुख ये कह दिंदा है परमात्मा मैं कुछ नहीं, इनू ही कहंदे ने उहदा नाम लेना। हुण जो बार बार जप के नाम लएगा फिर दिलों लएगा मैं कुछ नहीं हाँ, हजे तो उत्तों उत्तों लिया जाता। मैं फिर कह दियाँ मनुख दो धारा चल सकता है, ऐसी संभावना ये अंदर है। ये दिमाग तो कुछ हो सकता है, दिलों कुछ हो सकता है, ऐसी संभावना ये अंदर जुड़ी हुई है। मनुख अपने परिवार वास्ते कुछ हुंदा है, समाज वास्ते कुछ हुंदा है। परिवार नाल दिल हुंदा है, समाज नाल दिमाग हुंदा है। अपने बच्चों के लिए कुछ होर है, दूजे दे बच्चों के लिए कुछ होर है। क्यों? अपने बच्चों लिए दिल है, दूजे लिए दिमाग है। अपने बच्चों नाल प्यार है तो वह दिलों है। मोह है, प्यार नहीं, मोह। प्यार अलग चीज़ है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी के कोल एक सिख चल के आया। सिखां दी भगत माल दे विच ये साखी भाई वीर सिंह दी जिहड़ी एडिट की हुई वो ग्रंथ है, उहदे विच उन्हां लिखी है। गुरु साहब जी के कोल चल के आया, कहंदे महाराज जे जिंदगी च मैलां ही इकट्ठियां कीतियां होण, पाप ही इकट्ठे कीते होण, किवें लैणगे? महाराज कहंदे ने जिवें पानी दे नाल कपड़ा बड़ा मैला होए ते उस ते रंग चढ़ाइए, रंग चढ़दा नहीं। फिर किवें चढ़दा है कपड़े ते रंग? महाराज कहंदे कपड़े नूं पहलां धोना पैंदा है, धो के जदों साफ हो जांदा ना फिर उत्ते रंग चढ़दा है। महाराज कहंदे इवें मन भी एक कपड़ा है ते ये मैला कपड़ा है, हुण इनू धोना है। महाराज कहते मन सूक्ष्म है, क्योंकि मन तई जल नहीं पहुंच सकता। महाराज ने ताई जपजी साहब च पहली पंक्ति लिखी, सोचै सोच न हो गई जे सोची लखवा। कमाल की गल तो यह है, शरीर नू रोज़ साफ किया जाता है, पर शरीर के साफ होने दे नाल मन कदे नहीं साफ होया। ऐसा नहीं है सवेरे इशनान किया होए तो इशनान करने दे नाल राती जिहड़ी मन में माड़े विचार सी खत्म हो गए, नहीं हुंदे। माड़े विचार नहीं खत्म, क्योंकि जल की पहुँच शरीर तई है, मन तई नहीं है। मन सूक्ष्म है, उहदे तई पहुँच भी सूक्ष्म चीज़ की होएगी। सूक्ष्म का मतलब जिहड़ा विखदा ना होए उहनूं सूक्ष्म कहंदे ने। फिर उहदे तई पहुँच किहदी है? नाम है जिहड़ा परमात्मा की बंदगी, ये भी सूक्ष्म है, गुरबाणी भी सूक्ष्म है। मन तई पहुँच हुंदी है बाणी दी, बाणी पहुँच जाती है मन तई। इस करके महाराज कहते भाई बार बार रब का नाम लै, उस दिन नाल की होएगा? जो तेरे मन की मैल है वो लै जाएगी ते अंदरों प्रकाश होएगा, समझ लग जाएगी दुनिया की है। फिर गुरु अर्जन साहब जी ने गुरु नानक साहब जी की ये पंक्ति बोली, भरिए मत पापां कै संग ओ धुपै नावें कै रंग। वो धुप जाती है नाम के रंग नाल। महाराज साहब जी ने यह सुभाव बयान किया परमात्मा का। परमात्मा की है? बख्शिंद है, उहदे दिल दे विच दया है। अपनी सिमरती दे विच साडे विकारां नूं नहीं रखदा। वो जिवें मनुख की सिमरती दे अंदर किसी दे गुण ने, किसी दे अवगुण ने, किसी दे परोपकार याद ने, किसी दे अत्याचार याद ने। सिमरती कहंदे ने यादाश्त दे विच। जिन्ने आप जी इत्थे बैठे हो सारियां दी याद दे विच किसी दे गुण होणगे, किसी दे अवगुण भी होणगे। कदे अपनी जिंदगी आप सोच के वेखना, याद करके वेखना। याद दे विच किसी दे अत्याचार ने, किसी दे परोपकार ने, किसी ने कदे मदद की होए वो भी याद है।
कदे किसी ने लड़ाई ते झगड़ा किया है वो भी याद है, सिमरती विच है। ਹੁਣ एक होर याद रखना, जिहड़ी चीज़ सिमरती विच है ना, डिलीट नहीं हुई, वो रोज़ रोज़ साडे मन नूं प्रभावित करती है। आप जी कहोगे लगदा ते नहीं, किवें प्रभावित करेगी? वो सूक्ष्म है, साडे मन की कार्रवाई नूं रोज़ प्रभावित करती है, तां ही ते मन परमात्मा नाल जुड़दा नहीं। कदे संगत विच बैठिया मन काला पैण लग जाता है, ऐसा भी हुंदा है मन दे नाल। कारण कि मन की सिमरती दे विच सूक्ष्म तौर ते कई चीज़ां पईयां ने, जिवें डाटा पिया हुंदा ना सूक्ष्म तौर ते, वो डाटा पिया है अंदर सूक्ष्म तौर ते, वो प्रभावित करता है साडे जिंदगी की कार्रवाई नूं। इनू ना दुनिया के जिन्ने विद्वान होए ने, एक फ्राइड होया है, उन्हें अवचेतन मन किया। बाणी चलो अवचेतन मन नहीं कहती, उसकी अपनी कल्पना है, अपने तरीके नाल उन्हें डिवाइड किया है। महाराज तो सीधा मन ही कहते हैं, चेतना कहते हैं, और चेतना नूं जिन्ना मर्जी डिवाइड कर लो, चेतना का किहड़ा अंत है? चेतना डूंगी तो डूंगी है। चलो अवचेतन मन ते असीं खलो गए हैं, उस तो पिछे जावांगे, होर बड़ा कुछ हुंदा है। परमात्मा बख्शिंद है, उसकी सिमरती दे विच साडे विकार नहीं, क्योंकि वो दीन दयाल है, जिहड़ा उसनूं कह दिंदा है परमात्मा मेरी जिंदगी विच मेरे विच कोई गुण नहीं, तू मैनू बख्शना कर। मेरी जिंदगी दे विच मेरे कोल कोई पदवी नहीं, कोई इज्जत नहीं, तू मैनू बख्श लै। भगत इवें ही कहते हैं, जो कोई मनुख बख्शिया जाता है ना, बख्शिया इवें ही जाएगा। तो परमात्मा का सुभाव सानू पता लग गया, वो की है, वो बख्शण वाला है। जे किसी ने लखां पाप भी कमाए होण, फिर भी वो परमात्मा का नाम लए, वो फिर भी बख्श दिंदा है। जेह सिमरत गणका सी उधरी, गुरबाणी का शब्द, जिस दे सिमरन दे नाल गणका का पार उतारा हो गया। हुण गणका ते बड़े पाप करदी है। भाई गुरदास जी कहते ने, गणका पापन होए कह पापां दा गल हार परोता। इन्ने पाप ने, पापां दा हार ही पाया है गल विच। पर उहदे ते बख्शिश किवें हुई? एक साधु उहदे घर आया, साधु ने उन्होंने तोता दिता, तू बंदगी करया कर। हुण गणका बंदगी करदी है। कमाल दी गल यह है, बंदगी करन दे नाल गणका दे पाप कट्टे जांदे ने। इस करके इत्थों ही पता लगता है, गणका ने पता नहीं किन्ने नीवें तो नीवें काम कीते ने, पर जदों उन्हें बंदगी की, थोड़ा जा मन निर्मल होया, परमात्मा अगे बेनती की, परमात्मा ने बख्श दिता। वही गणका अज तई लोग भगतनी कह के पुकारते हैं। चंद्रमणी नां दी वो बीबी, जिन्हों गणका कहते हैं, वेश्या नूं वेश्या कहा जाता। प्रभ बख्शिंद, दीन दयाल, बख्शण वाला है। दूजा उहदा गुण है दीन दयाल। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ हथ जोड़ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ना, दीन हो जाते हैं, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਆਲੂ हो जाता है। ਅਸੀਂ ना दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ एक ही चीज़ करते हैं, ਜਦੋਂ कोई ना ਸਾਡਾ दुनियावी तौर ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ कोई भी जोर ना चले, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ हथ ही जोड़ते हैं, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ कोई ना जोर चले, फिर मनुੱਖ ਕਹਿੰਦਾ लो तेरे अगे हथ जोड़ते हैं, ਹੁਣ ਤੇ माफ़ कर दे। दीन इनू ही कहते हैं। यही अवस्था है, परमात्मा तेरे अगे हाथ ही जोड़दा, मेरे करन नाल ते कुछ होया नहीं। जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो ना मन को मांग। बड़े जतन किते ने जिंदगी, मेरे करयां ते ठीक हो ही नहीं। हुण मैं तेरे अगे ही हाथ जोड़दा, तू ही कोई किरपा कर दे। फिर जदों मनुख की ऐसी अवस्था हो जाएगी ना, परमात्मा उदों ही दयालु हो जाएगा। ये बाणी का फरमान है। हुण पहला ऐसा दिल बनाना पएगा। मनुख दे अंतरीवी मन दे अंदर इसकी पढ़ाई इनू प्रभावित करेगी। इसदे कोल जे कोठी है, कार है, ये नेचर नू प्रभावित करेगा। हुण जदों इन्नियां चीज़ां दा अंदर मान है, किते इनू हथ जोड़न देवेगा परमात्मा के? नहीं जोड़न देगा। उत्तों उत्तों भावें जुड़ जाण, दिल नहीं जुड़ता परमात्मा अगे।
जिदन दिलों दे अगे हथ जोड़ के उदन ही कृपालू हो जाना उन्हें। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ है ये। मनुख दे कोल जो कुछ भी है ना सूक्ष्म तौर ते ਉਹਦੇ नेचर ਨੂੰ प्रभावित करता है, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ। एक मनुख ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ निर्बल खड़ा है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सारी शक्ति है, ਧੱਕੇ ਨਾਲ मनुख उस ते दबाव पा लैंदा है, धक्के नाल। क्यों? इनू याद है मेरे को, मेरे सुभाਅ दे विच मेरे को प्रॉपर्टी है, मेरे को पैसा है, मेरे को पढ़ाई है, धक्के नाल प्रभाव पा लैंदा है। दूजी गल एक होर भी नोट करना, जदों अपने तो तकड़ा मनुख अगे खलोता होए ना, अपने तो प्रॉपर्टी च भी अगे, पढ़ाई च भी अगे, ये धक्के नाल दब जाता है उस जगह, नेचर अपने आप ही थल्ले आ जाता है। ये भी कमाल की गल है। पिछले समय च ना पिंडां च बहुरूपीए होंदे हुंदे सी, एक ही बंदा हुंदा सी, कदे राम बन जाता सी, कदे लक्ष्मण बन जाता, वही रावण बन जाता सी। इवें मनुखी नेचर भी है, ये मनुखा के हिसाब नाल बदल जाता है। दिन दे विच असीं कई बारी रूप बदल लैंदे हां, कई बारी शरीर यही रहिंदा है, मन करके बड़े बारी रूप बदल लैंदे। गुरुद्वारे रूप कुछ होर हुंदा है, गुरुद्वारे तो बाहर घर कुछ रूप होर हुंदा है। जदों बाणी पढ़ रहे हैं उदों रूप कुछ होर है, जदों गुटका साहब रख दिता है उदों रूप कुछ होर है। इनू कहंदे ने बहुरूपिया। हुण जिहदे इन्ने रूप ने, परमात्मा नाल ते उहदा कोई संबंध नहीं है। परमात्मा ते बाणी कहती है जे एक होए तां उगवै। जदों तई मन ते बुद्धि एक नहीं ना हुंदे, जदों दिल ते मन एक नहीं हुंदे, उदों तई नहीं परमात्मा की बख्शिश मिलती। परमात्मा के जिस दिन मनुख ने हथ जोड़ दिते उस दिन वो बख्शिश कर देगा। अगला नेचर की है परमात्मा का? बाणी कहती है भगत वत्सल सदा कृपाल। दूजा नेचर ओदा यह है जो ओदी बंदगी करता है ओदी ओ रक्षा करता है। हुण इत्थे एक सवाल पैदा होएगा भी परमात्मा जेड़े तेरी बंदगी करते हैं तू उन्हां दी मदद ही क्यों करदा? इहदा मतलब तो तू ही सैल्फिश है। असीं इत्थों वेख लैंदे हां भी खुद गर्ज है परमात्मा भी। क्यों? जेड़ी ओदी बंदगी करते हैं तो उन्हां दी मदद करता है? नहीं, ऐसा नहीं है उन्हां दी जान के करता है। परमात्मा का सुभाअ है ऐसा। हुण आप जी किसी मनुख नूं पुछो भी तू सड़क ते खड़ा पानी पिया रहा, क्यों? कहंदा की करा, मेरा सुभाअ ही ऐसा है। परमात्मा का सुभाअ ही ऐसा है, जेड़े ओदी भगती करते हैं उन्हां दी ओह मदद करदा ही करदा है, अज दा नहीं। गुरबाणी विच मैं आप जी नूं दो उदाहरण दसने चाहांगा। एक उदाहरण अज तो करोड़ों सालों का है, एक उदाहरण अज तो 500 सालों का है। दोवें उदाहरण आप जी जो पढ़ोगे ना हैरान हो जाओगे भी परमात्मा अज का मदद नहीं करता अपने भगतों की, करोड़ों सालों तो कर रहा है। हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हुण जुग जुग इत्थे गल नोट करने वाली है गुरु साहब जी की। जुग जुग सतयुग दे विच भी उन्हें मदद की, द्वापर दे विच भी द्रौपदी दी कीती, कलयुग विच भी करता है। बाणी च उदाहरण आया हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। और हरनाकश की तो कोई डेट भी नहीं है, कदों होया कोई डेट नहीं, उदों भी परमात्मा ने मदद की। हरनाकश दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लह छड़ाया। हुण इत्थों पता लगता है परमात्मा भगत वत्सल है। वत्सल का मतलब मदद करने वाला, भगतां दी रखण वाला, पैज रखण वाला, इज्जत रखण वाला। मैनूं कई बारी याद आउंदी है भगत दे उत्ते जो साखी चलती है, एक फकीर गली चों लंघ रहा सी, एक बीबी अपने घर की छत ते खड़ी, उन्हें कूड़ा इकट्ठा किया ते उत्तों पा दिता भगत दे सिर च। उत्तों उन्हें थुकिया ते भगत दे सिर विच थुक आके पै गया। भगत ने उत्ते वेख्या, वो कहंदी अपने घर वाले नूं थल्ले जा, माड़ा जा कपड़े इहदे पाटे ने, इहदी की मजाल है साडे वाल उत्ते वेखे, तू माड़ा जा डंडा मार के आ इहदे। उसका घर वाला थल्ले आया, डंडा लैके आया, हंकार दे विच मड़िया होया सी।
ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਆਈ ਫਕੀਰ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਡੰਡਾ ਮਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੰਡਾ ਤੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਖਸਮਾਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਖਸਮਾਂ ਤੇ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ 3-4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਖਸਮਾਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਪਹਿ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੈਜ ਰੱਖੇਗਾ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕ ਜਾਣੈ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈ, ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ, ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰੰਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਕਾਜ ਕੀਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾ ਵੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਆਪ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ। ਭਗਤ ਵੱਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ। ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਥ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਤੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਭੱਜੈ ਸਭੋ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਨਾਥ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਅਨਾਥ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਨਾਥ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ।
हुण अनाथ का मतलब ये नहीं जिहदे माँ बाप ना होण, ऐसा नहीं। अनाथ का मतलब जिहदा कोई सहारा ना होए, जिहदा कोई सहारा नहीं तो वह कह दे परमात्मा मेरा तो कोई सहारा नहीं, दिलों उन्होंने पता लग जाए किसी ने मेरा साथ नहीं देना क्यों मैं गरीब हाँ, मेरे को किहड़ा पढ़ाई है, मेरे को किहड़ा कोई जोर है। जे उन्होंने दिलों कह दिता मेरा कोई सहारा नहीं, परमात्मा हुण तू ही मेरा सहारा बनना है। बाणी कहती जे ऐसी गल होए ना फिर याद रखना, फिर मारन वाला नहीं फिर बचाउण वाला वड्डा हो जाता है। श्लोक सहस्कृति दे ना विच एक श्लोक है इस पंक्ति के उत्ते, मृगी पेखंत बद्धिक प्रहारेण लख आवदह। बाणी दे विच महाराज कहंदे ने एक मिर्गी नूं वेख के ना एक शिकारी आया जंगल दे विच, उहने की कीता एक बन्ने जाल विछा लिया, दूजे बन्ने अग ला दिती, तीजे बन्ने अपना कुत्ता छड़ दिता, चौथे बन्ने आप खलो गया, विच हिरण घिर गया। हुण वेखण वाला तो वेखेगा भी ये अनाथ है, हुण इहदा कोई सहारा नहीं। पर बाणी कहंदी नहीं, जदों मनुख सहारा बने ना परमात्मा, हुण चारे बन्ने मौत खड़ी है फिर भी बचा सकदा किवें। कहंदे बड़े जोर की हवा चली, जिधर जाल लाया सी ना वो जाल उड्डिया ते उड़ के जाके अग दे विच डिग गया। अग डिगी, नेरी चली, उधरों मीह आ गया, अग बुझ गई। जिथे शिकारी खड़ा सी ना, शिकारी थलों खड़ा, थलों उहदे थले सप दी रुड सी, उहदे विचों सप निकलिया, शिकारी दे वड़ गया। तीर चलाउणा सी हिरण ते लग गया जाके अपने कुत्ते दे, चारे दे चारे मार दिते परमात्मा ने। हुण इत्थों यह लगता है बचाउण वाला वड्डा हुंदा है, मारन वाला वड्डा नहीं। इवें परमात्मा मदद कर। हुण चारे बन्ने मौत खड़ी है हिरण दे, गुरबाणी का यह शब्द बाणी कहती है याद रखना चारे बन्ने मौत है, पर परमात्मा ने हिरण नूं बचाउणा है। चारे दे चारे जिहड़े वड्डे तरीके सी, जाल बड़ा वड्डा तरीका है, अग बड़ा वड्डा तरीका है, कुत्ता है शिकारी उन्हें हिरण नूं पाड़ लेना है, एक बने तीर लैके खलोता है, चारे दे चारे आसरे ही खत्म हो गए। मृगी पेखंत बद्धिक प्रहारेण लख आवदह। बाणी ते इत्थों तक कहती है जे परमात्मा की आग्ञा होए एक छोटी जी कीड़ी भी वड्डे वड्डे मनुखों के साह खिंच लैंदी है। छोटी जी परमात्मा की मेहर होनी चाहिए है। अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्ब घटा करत प्रतिपाल, ईडा वड्डा है वह सारियां नूं ही पालदा है। बाणी दे विच शब्द है जल थल महियल पूरिया रविया विच बना। हुण इत्थे एक सवाल पैदा होएगा, परमात्मा सारियां दे विच रविया है फिर विखदा क्यों नहीं? जो सारियां दे विच है फिर विखदा क्यों नहीं? ते किहड़े रूप दे विच है वो सारियां विच? बड़े सूक्ष्म रूप विच वो सारियां दे विच है। समझ लो आ रुखां दे हरे पत्ते ने, हरे पत्तियां दे रूप विच उन्हां विच है। मनुखां विच लाल रंग दा खून चल रहा, खून दे रूप विच वही है। साह चल रहे ने, साहां दे रूप विच वही है। जदों परमात्मा मदद करता है आप तो उत्थे सीधा भी आ जाता है, पर मनुखां दे विच ही मदद करता है। मनुखां दे विच फुरने ही ऐसे पा दिंदा है लोकां दे विच। जिहड़ा मारन वाला हुंदा है उहदे अंदर फुरना ही ऐसा पाउंदा है, आप ही मर जाता है। दूजे नूं मारदा मारदा, दूजे नूं खत्म करदा करदा आप ही खत्म हो जाता है। फुरना ही ऐसा कर दिंदा है उहदे अंदर। महाराज कहते सारियां नूं वो पालदा है। आद पुरख कारण करताद भगत जना के प्राण आधार। वो परमात्मा आद पुरख है, सारी सृष्टि का कारण है, ते भगत जना दे प्राणा का आधार है। भाव एक मिनट भी भगत परमात्मा नूं नहीं विसारदे। अंत दे विच महाराज कहंदे ने जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत भाए लावै मन हीत। जो भी उन्होंने जपदा है वह पुनीत हो जाता है। भगत भाए लावै मन हीत, भगती भाव दे नाल परमात्मा के प्रति उस दे अंदर प्रेम जाग जाता है। हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। हे परमात्मा असी नीच हाँ,
ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ।